वेलकम टू साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव। और इस लेक्चर में देखेंगे हम प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर, denaturation of proteins, and more facts. One by one, see. So first of all, the proteins are the polymers. Proteins क्या है? Proteins are the polymers. जब polymers होगा तो इसके मोनोमर्स भी होंगे, यानी आई मीन की बेस यूनिट भी होंगे. So the monomers of the proteins are the alpha amino acids. Okay, so you can say that the proteins are the polymers of alpha amino acids. Okay, now how these alpha amino acids are linked? These alpha amino acids are linked by, see here, peptide bonds. This one, CONH. Okay, and here also you can see this bond here. Here this is one amino acid and this another amino acid. They are linked by this bond CONH. This is your peptide bond. Okay, or it's also known as peptide linkage. Now next point, amino acids contain amino NH2 group. This is your basic character. And carboxyl group COH functional group, this is your acidic character. So in amino acid both the groups are present. One amino group, this is the basic character, and COH group, this is the acidic character. Okay, next see something more. Now I come to essential amino acids and non-essential amino acids. First of all, मैं बता दूं आपको कि दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एमिनो एसिड. अल्फा एमिनो एसिड का ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है here, R single bond CH, COH and NH2. This is your acidic character and this is your basic character. This is a structure of alpha amino acid. Clear? Now there are two kinds of amino acids. One is called essential and another is called non-essential. Essential का मतलब हुआ कि cannot be synthesized in our body. ये हमारे बॉडी में इनका संश्लेषण नहीं होता है, हमारे बॉडी में इसका निर्माण नहीं होता है, and that's why this must be supplied through our diet. जब हम भोजन करते हैं उस भोजन के माध्यम से हमें प्रोटीन को लेना पड़ेगा. And essential examples of essential amino acids are valine, next one leucine, next one histidine, and next one lysine, and next one tryptophan, etc. So these are your essential amino acids. Okay, next come to non-essential. Non-essential examples है aspartic acid here, next one asparagine, next one glutamic acid, and next one triosine, and next one glycine, etc. These are the examples of non-essential amino acids. Next come to know about the classifications. Okay, amino acids are classified. See here, amino acids are classified as acidic, basic और neutral. ये अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है. It will all depend upon the relative number of, किस पर निर्भर करेगा, आपेक्षिक संख्या कितनी है किसकी, एमिनो ग्रुप की, जो ये बेसिक कैरेक्टर बता रहा है NH2 ग्रुप, और आपको फिर एसिडिक कैरेक्टर COH ग्रुप. तो इनके रिलेटिव नंबर्स कितने हैं इस बात पर निर्भर करेगा. यदि बराबर हो जाएगा दोनों तो क्या होगा, एमिनो एसिड न्यूट्रल हो जाएगा, और यदि NH2 ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बेसिक हो जाएगा, यदि COH ज़्यादा हो जाएगा तो एमिनो एसिड फिर क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा. ओके, ऑल क्लियर. नेक्स्ट कम टू नो समथिंग मोर. एमिनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड. ये जो होते हैं एमिनो एसिड वो क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं
और फिर ये रवादार होते हैं, इनका क्रिस्टल फॉर्म में ये होता है। कैसा होता है फिर? ये सॉलिड होता है, ठोस भी होता है ये। और नेक्स्ट फीचर इसके ये है कि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये जल में घुल जाते हैं और इनका हाई मेल्टिंग होता है। नेक्स्ट कम टू नो, ये एमिनो एसिड्स बिहेव लाइक सॉल्ट, ये सॉल्ट की तरह बिहेव करता है। जब हम क्वेश्चन होगा कि सॉल्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? नमक। तो एमिनो एसिड जो होते हैं वो सॉल्ट की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है बिहेव? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक COH फंक्शनल ग्रुप एंड बेसिक NH2 फंक्शनल ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल। दोनों में क्या होगा? आपका एसिडिक और बेसिक जो फंक्शनल ग्रुप है वो एमिनो एसिड में प्रेजेंट है, सिंगल एक ही मॉलिक्यूल में, एंड दैट्स व्हाई इट बिहेव्स लाइक व्हाट? सॉल्ट। नेक्स्ट कम टू नो deuter ion. Here, this is the structure of deuter ion. RCH, a single bond NH2, and here C double bond O. Here single bond OH, and now you get here RCH and this NH2 with plus charge, and here this O minus charge. Okay, this is deuter ion. ये क्या हुआ आपका? This is your deuter आयन, isn't it? अब क्या है, ये जो ड्यूटर आयन होंगे, और ये हम कह सकते हैं कि ड्यूटर आयनिक फॉर्म में जो होंगे हमारे, वो एम्फॉर्टिक बिहेवियर शो करेगा। एम्फॉर्टिक का मतलब होता है इट बिहेव्स एज एसिड एज वेल एज द बेस, दोनों से रिएक्ट करता है। एंड ये क्या है? एसिड से भी करेगा और बेस से भी करेगा। और ये जो बिहेवियर होता है वह किसी भी सब्सटेंस का, उसको हम कहते हैं एम्फॉर्टिक बिहेवियर करते हैं यहाँ पे। तो ड्यूटर आयनिक फॉर्म जो होते हैं वो एमिनो एसिड्स के, वो क्या शो करते हैं? ये आपका एम्फॉर्टिक कैरेक्टर को शो करता है, एंड दैट्स व्हाई दे रिएक्ट बोथ विथ एसिड एंड बेस। ओके, कोई डाउट है आप लोग का? नो। नेक्स्ट कम टू नो, इन एक्वस सॉल्यूशन द कार्बोक्सिल ग्रुप कैन लूज ए प्रोटॉन, यहां देखिए कैन लूज ए प्रोटॉन, एंड एमिनो ग्रुप कार्बोक्सिल मीन्स व्हाट? COOH. okay, एमिनो ग्रुप मीन्स व्हाट? NH2. okay, तो क्या होगा कि इन एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा जब हम ये एमिनो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, तो इसमें क्या होगा कि कार्बोक्सिल ग्रुप मीन्स COH कैन लूज ए प्रोटॉन, और एमिनो ग्रुप मीन्स NH2 कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट विल बी ए डाइपोलर आयन, and this dipolar ion is called what? Deuter ion. और deuter ion में क्या है? ये एज ए होल न्यूट्रल होता है, ये उदासीन होगा, लेकिन इट विल कैरी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। दैट्स व्हाई दिस deuter ion is neutral but contains both positive and negative charges. Next come to know the fibrous proteins and globular proteins. Examples are, say, keratin, hair, wool and silk. These are the examples of fibrous proteins. And next example is myosin in muscles. और ये जो fibrous proteins होते हैं, these proteins are normally insoluble in water, यानी पानी में नहीं घुलेगा। Come to the globular proteins. इससे examples है, इंसुलिन है आपके, फिर एल्बुमिन्स है, और ये दोनों जो है ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होते हैं, दिस आर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुल जाते हैं। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हुआ हमारा? पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये हुआ कि फाइबर प्रोटीन्स क्या होता है? फाइबर प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, अघुलनशील नहीं घुलेगा, वेयर एज ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, मीन्स ये जल में घुल जाएगा। नेक्स्ट कम टू नो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स मीन्स कि प्रोटीन का जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी समाप्त हो जाता है ड्यू टू सम चेंजेस। मान लिया जाए पीएच वैल्यू को चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोटीन का जो होता है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होता है वो प्रोटीन का वो मिस कर जाता है, माने लॉस्ट हो जाता है, और इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन। ओके, सो सी हियर डीनेचुरेशन। प्रोटीन्स फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी मैं बताया अभी आपको कि बायोलॉजिकल सिस्टम विद ए यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर
एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ऐसे प्रोटीन को हम कहते हैं नेटिव प्रोटीन। ओके, नेटिव प्रोटीन में क्या होगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी रहेगा और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहेगा। और क्या होगा कि यदि किसी कारण से हम फिजिकल चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं और केमिकल चेंज कर देते हैं, पीएच वैल्यू को चेंज कर देते हैं, सी है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, मतलब हुआ कि फिजिकल कंडीशन को चेंज कर दिए, टेम्परेचर को चेंज कर दिए। नेक्स्ट क्या है, पीएच वैल्यू को चेंज कर दिए, मतलब क्या हुआ, हम केमिकल चेंज कर दिए। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं दैट इज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री स्ट्रक्चर ओके आर डिस्ट्रॉयड। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस को हम बोलेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, मीन्स द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ नेटिव प्रोटीन बिकॉज ऑफ चेंज इन physical conditions, say the temperature, change in chemical condition, share the pH value. Okay, एग्जाम्पल्स हमारे हैं इसके उदाहरण हमारे पास है। डीनेचुरेशन के क्या है, कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग। These examples are most common examples of denaturation protein. क्या है, पहला coagulation of egg white on boiling. नेक्स्ट क्या है हमारा, curdling of milk caused due to the formation of lactic acid by the bacteria present in the milk. तो denaturation के हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हुए, 2 उदाहरण हो गए। पहला हो गया क्या आपका, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, coagulation of egg white on boiling, and next one is curdling of milk. These are the 2 most common examples of denaturation of protein. That's all for the day. Thanks for watching the video.